Dear students, have you ever realized that being a student of science, you are often supposed to carry out various mathematical calculations and different kind of experimental analysis? And yet, most of the times, the measured value of our result comes out to be slightly uncertain. Students, today in this particular video session, I will not only explain you the reason behind that uncertainty, but I will also let you know that how to report our answer in the best possible manner by using the concept of significant figures. Hey everybody, this is Ankur Goel and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, let us first understand the reason behind the uncertainty in our answer. Always remember that there can be just three reasons behind the uncertainty in our measured answer, and those three reasons are the limitations of the measuring device. Now let's understand the meaning of this first point. Students, always remember that sometimes the measuring device may not be suitably calibrated to measure the sub measurements. For example, let us consider this ruler having 0 centimeter mark, then 1 centimeter mark, followed by 2 centimeter mark, 3 centimeter mark. So let there be a ruler which is calibrated to measure the centimeters, but the internal calibrations between the centimeter, यानी कि centimeter की जो internal calibrations है millimeters, वो इसमें marked नहीं है. Now this is a limitation, students. Now suppose कीजिए if I ask you to measure the length of this pen using this measuring ruler, then if we place this pen over this ruler starting from 0, then you can see कि this pen ends at this particular point. आप देख सकते हैं ये pen इस point पे end कर रहा है. It is lying somewhere between 1 and 2, but since the instrument does not have internal calibrations, therefore definitely we have to report our answer with certain degree of ambiguity in it. कोई स्टूडेंट इसे 1.2 रिपोर्ट कर सकता है और कोई दूसरा स्टूडेंट इसे 1.3 भी रिपोर्ट कर सकता है. तो फर्स्ट रीजन तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा अपने आंसर में अनसर्टेनिटी आने का कि देयर माइट बी सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस. नाउ द सेकंड लिमिटेशन इज द फॉल्टी कैलिब्रेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. Now याद रखिएगा स्टूडेंट, sometimes the instrument may not be reliable enough to have the perfect calibrations in it. कई बार बहुत रेयरली कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम एनकाउंटर कर सकते हैं जिसमें कैलिब्रेशंस करेक्टली मार्क्ड नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगेन कंसिडर द केस ऑफ दिस रूलर. इमेजिन कीजिए कि अगर इस रूलर में 1 सेंटीमीटर का मार्क इंस्टेड ऑफ दिस यहां लगा हुआ है, तो डेफिनेटली दिस इज अ फॉल्सली कैलिब्रेटेड रूलर और हम कुछ भी इससे मेजर करेंगे तो वो हमें गलत रिपोर्टिंग देगा आंसर की. तो सेकंड कॉज ये होता है हमारे आंसर में एरर आने का. तो फर्स्ट रीजन आई टोल्ड यू दैट देयर माइट बी सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड द सेकंड रीजन इज द फॉल्टी कैलिब्रेशंस ओवर दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. And the third reason, which is again very common, is the inefficacy or the lack of skill on the part of experimenter. तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहा है, दैट पर्सन लैक्स इन एफिशिएंसी. उस पर्सन को प्रॉपर तरीका ही नहीं आता एक्सपेरिमेंट करने का और इसलिए भी उसकी मेजरमेंट्स में एरर आ सकती है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री रीजंस बिहाइंड द अनसर्टेनिटी इन आवर आंसर. But students, the fact remains that whatever may be the reason behind the uncertainty in our answer, but we always desire our answer to be perfectly accurate and precise. At least हम चाहते तो हैं कि हमारा आंसर accurate भी हो और precise भी हो. तो let us first understand the meaning of these two terms. सबसे पहले समझते हैं कि accuracy और precision का मतलब क्या होता है. So let us consider the term accuracy first. स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, द एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ आवर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट. एक्यूरेसी इंप्लाई करता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है किसी भी एक्सपेरिमेंट से, वो एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है. जितनी ज्यादा हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास होगी, जितनी ज्यादा उसके क्लोज होगी, हम कहेंगे उतना एक्यूरेसी लेवल हमारे आंसर में है. नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स द क्लोजनेस ऑफ आवर वेरियस मेजर्ड वैल्यूज टू वन अनदर. अगर हमने सेम वैल्यू को 3-4 बार मेजर करा है तो हर बार हमारी वो मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के काफी क्लोज आ रही हैं. तो एक्यूरेसी का मतलब होता है द क्लोजनेस ऑफ आवर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, व्हाइल द प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ आवर वेरियस मेजर्ड वैल्यूज टू वन अनदर. स्टूडेंट्स, इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. Students, let us consider the game of darts and arrows. Suppose कीजिए this is a target board and we are supposed to hit at this particular point. अब suppose कीजिए आप में से किसी स्टूडेंट्स को 3 डार्ट्स मिलते हैं
and you have 3 chances to hit this particular target point. सपोज कीजिए आपने पहला एरो यहां थ्रो करा, दूसरा डार्ट जब आपने थ्रो करा तो वो यहां पे हिट करता है, और तीसरा डार्ट जब आपने थ्रो करा तो वो यहां हिट करता है. तो स्टूडेंट यू कैन सी कि आपके तीनों थ्रोज एक्चुअल टारगेट से यानी कि ट्रू वैल्यू से काफी दूर हैं. तो इसका मतलब आपके आंसर में, आपके थ्रो में एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं है, एंड मोर ओवर आपके तीनों थ्रोज एक दूसरे से भी काफी दूर दूर हैं, तो इसलिए आपके थ्रो करने में प्रिसीजन भी नहीं है. तो योर थ्रो इज नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज. सिमिलरली नाउ स्टूडेंट्स कंसिडर करिए, एक दूसरे स्टूडेंट को फिर 3 एरोज मिले, 3 डार्ट्स दिए गए और उसे फिर 3 चांसेस मिले टू हिट दिस टारगेट. ही थ्रोज हिज फर्स्ट डार्ट एंड इट हिट्स ओवर दिस प्लेस. उसको सेकंड चांस मिली तो उसका सेकंड डार्ट यहां पे हिट करता है और थर्ड डार्ट उसका यहां पे हिट करता है. तो आपने देखा स्टूडेंट, इवन दीज थ्रोज आर नॉट एक्यूरेट. ये थ्रोज भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये तीनों थ्रोज हमारे एक्चुअल टारगेट से काफी दूर हैं. तो इस पर्सन के थ्रो करने में एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन क्या इस पर्सन के थ्रो करने में प्रिसीजन है? उसके तीनों थ्रोज एक दूसरे के काफी क्लोज तो है ना. तो ये याद रखिएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका आंसर एक्यूरेट ना हो और फिर भी प्रिसाइज हो. इस पर्सन के तीनों थ्रोज प्रिसाइज तो हैं बट एक्यूरेट नहीं है. अब नाउ कंसिडर करिए कोई तीसरा पर्सन, उसे भी 3 चांसेस मिले टू हिट दिस टारगेट पॉइंट. उस पर्सन का पहला एरो यहां पे हिट करता है, दूसरा एरो यहां हिट करता है और तीसरा एरो यहां पे हिट करता है. तो अगेन नाउ यू कैन सी कि इस पर्सन के थ्रो में एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है. एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि इसका हर थ्रो टारगेट के काफी क्लोज है, और प्रिसीजन इसलिए क्योंकि इसके तीनों थ्रोज आपस में भी एक दूसरे के पास पास है. सो आई होप नाउ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर परफेक्टली क्लियर टू यू. So students, just remember that whatever may be the reason behind the uncertainty in our answer, but we always desire our answer to be accurate as well as precise. But remember students, if for some reason our answer lacks accuracy and precision in it, then also we should know to report our answer in such a way so as to express the degree of uncertainty and the degree of ambiguity in it. And here comes the role of significant figures. अपने आंसर में डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करा जाता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, दिस टर्म सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल्सो एब्रिविएटेड एज सेगफिग्स. इसे शॉर्ट में सेगफिग्स भी कहा जाता है. First of all, let me tell you what is the meaning of significant figures. याद रखिएगा स्टूडेंट, significant figures include all those digits which are known with absolute certainty plus one last digit which is slightly uncertain. Significant figures में वो सारी digits included होती हैं जो absolute certainty के साथ मालूम है, प्लस एक last slightly uncertain digit भी included होती है. अब what do we mean by the uncertain digit और कहां से आती है uncertain digit, इसको समझने के लिए फिर एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस कंसिडर दिस रूलर ओवर द बोर्ड. नाउ कंसिडर करिए स्टूडेंट्स, वी आर सपोज टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टिक यूजिंग दिस रूलर. हमें इस रूलर से इस स्टिक की लेंथ मेजर करनी है. तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि इफ वी प्लेस दिस स्टिक ओवर द रूलर, अगर हम इस रूलर के ऊपर ये स्टिक प्लेस करते हैं तो यू कैन क्लियरली सी कि इट एंड्स समवेयर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. यहां कहीं एंड कर रहा है. सो दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 और 1.9 के बीच में आप देख सकते हैं स्टिक एंड हो रही है. बट दिस रूलर डज नॉट हैव एनी इंटरनल कैलिब्रेशंस बिटवीन 1.8 एंड 1.9. तो एक स्टूडेंट जो इस रूलर के थ्रू इस स्टिक की मेजरमेंट को रिपोर्ट करेगा, दैट माइट बी 1.82 या 1.85, कुछ भी रिपोर्ट कर सकता है. तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे इस रिपोर्टेड आंसर में 1.8 तक तो वी आर डैम श्योर कि यहां तक तो हमारा आंसर सही है, लेकिन 8 के बाद वाली ये डिजिट अनसर्टेन है बिकॉज हमारे रूलर की ये लिमिटेशन है कि इसमें इंटरनल कैलिब्रेशंस प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द अनसर्टेन डिजिट. स्टूडेंट्स याद रखिए, हमारे आंसर में 1.8 शुरू की 2 डिजिट्स को लेकर तो वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन, क्योंकि ये 2 डिजिट्स तो हमारे स्केल ने एक्यूरेटली मेजर करी हैं, लेकिन 8 के बाद आने वाली ये थर्ड डिजिट इज स्लाइटली अनसर्टेन. कोई स्टूडेंट हो सकता है 1.82 आंसर रिपोर्ट करे और कोई दूसरा स्टूडेंट 1.85 रिपोर्ट करे, डिपेंडिंग अपॉन हिज बिलीफ. तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस होल आंसर include 3 significant figures and out of these 3 significant figures, शुरू की 2 figures absolute certainty के साथ known है and this last digit is slightly uncertain. And you know कि this uncertainty arise because of the limitation of this measuring instrument. तो ये याद रखिए,
वो सारी डिजिट्स जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नोन है प्लस एक लास्ट डिजिट विच इज स्लाइटली अनसर्टेन, उन सबको मिला के बनती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स एक बार फिर सुनिए। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड ऑल द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी plus one last digit which is slightly uncertain. Now student, the most important thing is that you should know the rules to calculate the significant figures in a given number. तो चलिए अब हम रूल्स डिस्कस करते हैं कि एक गिवन आंसर जो हमारे सामने रिपोर्टेड है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये कैसे पता लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देयर आर जस्ट 4 रूल्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ गिवन आंसर एंड दोज 4 रूल्स आर डिस्प्लेड ओवर द बोर्ड। The very first rule is that all non-zero digits are always significant. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, all the digits from 1 to 9 are always significant. कोई भी नंबर आपको दे रखा है जिसमें 0 के अलावा कोई भी और दूसरी डिजिट है तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ 1.8217, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बिकॉज ऑल दीज डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो दिस नंबर कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमें दे रखा है 121, तो दिस कंटेन 3 significant figures. तो ये याद रखिएगा, all non-zero digits are always significant. Now the second rule is about the zeros. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, there can be 3 types of zeros जो हम किसी भी नंबर में फेस कर सकते हैं। एक होते हैं the leading zeros, एक होते हैं trailing zeros और एक होते हैं sandwiched zeros और trapped zeros. Let us first discuss the concept of leading zeros. Leading zeros का मतलब है the zeros in the starting of the number. For example, if we have certain number 0.00121, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में ये जो शुरू वाले जीरोस हैं, these are called the leading zeros and these are always insignificant. हमारे इस आंसर में अगर कोई आपसे significant digits पूछता है तो 1, 2 and 3, it contains just 3 significant digits. So leading zeros are always insignificant. Now let's move on to the trailing zeros. Trailing zeros स्टूडेंट्स उन्हें कहते हैं जो नंबर के एंड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए ये दोनों वैल्यूज 1214100 एंड 121.3.000। अब स्टूडेंट्स ट्रेलिंग जीरोस के लिए ये रूल याद रखिएगा कि ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट विद इन द नंबर। याद रखिएगा, अगर एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, तो उस केस में द ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। इसमें हम इन दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई हमसे पूछता है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, तो दीज आर द 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन जैसे ही हम किसी नंबर में डेसिमल प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो डेसिमल प्लेस करते ही डेसिमल के राइट साइड में लाई करने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर केस 1 2 3 4 5 6 7, दिस कंटेन्स 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई नंबर इस तरह का दे रखा है 0.00415500, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको एक लीडिंग जीरोस भी नजर आ रहे हैं और ट्रेलिंग जीरोस भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा द लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस को तो कभी सिग्निफिकेंट पे काउंट ही नहीं करना। ट्रेलिंग जीरोस इस केस में सिग्निफिकेंट होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। अगर किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो डेसिमल के बाद आने वाले जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सो दिस वैल्यू कंटेन 5 significant digits. So I hope you have understood the difference between the leading and the trailing zeros. Now let's move on to the sandwiched zeros, which are also known as the trapped zeros. Sandwiched zeros या trapped zeros उन zeros को कहा जाता है the zeros which lies between 2 non-zero digits. For example, students consider करिए we have a number 21001. तो इस केस में 1 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, इधर वाला 1 भी नॉन जीरो है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करने वाले जीरो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो दिस वैल्यू कंटेन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। सिमिलरली कंसिडर करिए ये वैल्यू 541.0039। So this value contain 7 significant digits because इसमें नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट होंगी और जो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स लाई कर रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो इन चारों रूल्स पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नॉन जीरो डिजिट्स तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं, लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट सिर्फ तब होते हैं व्हेन द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट इन इट, और सैंडविच्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर रूल रिलेटेड टू एग्जैक्ट नंबर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द एग्जैक्ट नंबर्स व्हिच डज नॉट हैव एनी अनसर्टेनिटी इन देम कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे हाथ में ये कितने पेन हैं,
तो आई होप आपको इस चीज को लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। यू आर डैम श्योर कि मेरे हाथ में ये 2 पेन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जितने भी पेन है उस आंसर को बोर्ड पे लिख दीजिए, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, आप 2 लिख देंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन होती है ऑल द डिजिट्स व्हिच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी प्लस 1 लास्ट डिजिट व्हिच इज स्लाइटली अनसर्टेन। अब इस 2 में तो कोई अनसर्टेन डिजिट है ही नहीं है, तो सर्टेन डिजिट रिपोर्ट करिए आपने। तो जहां पे आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होती है वहां पे हम मानते हैं कि जो अनसर्टेन डिजिट है वो इंफिनिटी पे लाई कर रही है। तो ये याद रखिए, ये 2 तो सर्टेन है, और अगर हम इस आंसर को ऐसे भी लिख देते 2.0 तो ये 0 भी सर्टेन होता, बिकॉज स्टिल वी नो कि दीज आर 2 पेन्स इन आवर हैंड। और अगर हम इसे 0 0 लिख देते तो भी ये सर्टेन होता, और 0 0 0 लिख देते तो भी ये सर्टेन होता। तो अनसर्टेन डिजिट कहां पे मिलेगी? तो हाइपोथेटिकली भी अज्यूम कि जिन नंबर्स के बारे में हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जिनका आंसर हमें एग्जैक्टली मालूम होता है, उनकी जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होती है वो इंफिनिटी पे लाई करती है। सो दैट्स व्हाई द एग्जैक्ट नंबर्स व्हिच हैव नो अनसर्टेनिटी इन देम, व्हिच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, they are known to contain the infinite number of significant digits. So I hope students आपको ये concept clear हो गया होगा कि exact numbers में infinite number of significant figures क्यों consider करी जाती हैं, क्योंकि exact numbers जिनका आंसर हमें certainty के साथ मालूम होता है, जिनमें कोई ambiguity नहीं होती, जिसमें कोई डाउट नहीं होता हमें, उनकी जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होती है वो हम हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के इस सेशन में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस बताई। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है हमारे आंसर में डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करना। Now lastly students, let me tell you the use of these significant figures. ये भी फाइंड आउट करते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जनरली हमें कैलकुलेशंस में इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का कहां पे यूज करना होता है। स्टूडेंट्स कंसिडर करिए, आई गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व। सपोज कीजिए मैं आपको एक फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए देता हूं 2.12 डिवाइडेड बाय 3.11, और व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू थ्रू अ कैलकुलेटर देन वी गेट दिस आंसर 0.6816720। सो अगर कैलकुलेटर ने हमें यह आंसर दिया तो क्या आपको लगता है यह आंसर बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज है और हमें आंसर को एज इट इज रिपोर्ट कर देना चाहिए? क्या आप में से कुछ स्टूडेंट्स को यह लगता है कि हमारा आंसर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स तक रिपोर्ट होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा? तो स्टूडेंट्स माइंड इट, दिस इज अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन जो आप में से काफी स्टूडेंट्स को होगा। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम अपने आंसर को जितना ज्यादा डिजिट्स तक रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा हमारा आंसर। बट द फैक्ट इज दैट कि हमारी जो गिवन वैल्यूज थी, आप कंसिडर करिए न्यूमरेटर में दी हुई वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन आपने अपना आंसर रिपोर्ट कर दिया 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपना आंसर 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्ट करा है, जबकि क्वेश्चन में आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे रखी थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इट इंप्लाइज कि आपने अपना आंसर हमारी गिवन वैल्यू से भी ज्यादा प्रिसाइजली रिपोर्ट कर दिया। एंड दिस इज क्वाइट इलॉजिकल स्टूडेंट्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा क्वेश्चन जितना प्रिसाइज था हमारा आंसर उससे भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाए। So just याद रखिएगा स्टूडेंट्स, we should always report our answer in same number of significant digits as were given in the question. जितनी significant digits हमारे question की given values में होती हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कभी भी हमें आंसर रिपोर्ट नहीं करना होता, वरना हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन से भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, which makes absolutely no sense. तो इस क्वेश्चन में अगर हमारे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो हमारा आंसर भी मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्ट होना चाहिए। एंड इन दैट केस हमें ये लास्ट की 4 डिजिट्स ड्रॉप करनी होंगी, शुरू की 3 डिजिट्स रिटेन करनी होंगी 0.68। एंड नाउ वी कम टू द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। स्टूडेंट, आई होप आपको ये मालूम होगा कि जो लास्ट डिजिट हमें ड्रॉप करनी है, अगर वो डिजिट 5 या उससे बड़ी है तो हम पिछली वाली डिजिट को एक नंबर से बढ़ा देते हैं। सो वी विल रिपोर्ट दिस आंसर 2.682 एंड दिस इज द करेक्ट वे टू रिपोर्ट आवर आंसर। सो इस तरह की कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। एक ऐसा एग्जाम्पल डिवीजन का कंसिडर करते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यूज में अलग अलग सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सपोज कीजिए वी आर सपोज टू ऑपरेट दिस 8.000 divided by 532, and when we solve it through a calculator then it comes out to be 0.015037594. Now surely this is not the correct way to report our answer. हमें कभी भी अपना आंसर इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी क्वेश्चन में भी उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ना दे रखी हों। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, सबसे पहले
अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दीज आर द ट्रेलिंग जीरोज दैट कम्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और मैंने आपको बताया ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होता है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। डिनोमिनेटर में यू कैन सी कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें डिवाइड करते वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे रखी हैं तो हमें अपना आंसर टू द लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रिपोर्ट करना होता है। तो इन दोनों में से जिसमें भी लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतनी ही डिजिट्स तक हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना होगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में वी हैव जस्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही रिपोर्ट होना चाहिए। सो जस्ट कंसिडर दैट वी हैव टू रिपोर्ट दिस आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब याद रखिए स्टूडेंट, शुरू के लीडिंग जीरोस तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। पहली सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 1 है, दूसरी 5 और तीसरी डिजिट ये 0 है। यहां तक हमें अपना आंसर रिपोर्ट करना है, इसके आगे का सब ड्रॉप करना है हमें। तो अगर हमें यहां तक अपना आंसर रिपोर्ट करना है, वी आर सपोज टू ड्रॉप दिस 3, तो आप देख सकते हैं दिस 3 इज लेस देन 5, इसलिए हम इससे पिछली वाली डिजिट को एज इट इज रिटेन रखेंगे, इसे 1 नंबर से अप नहीं करेंगे। सो आवर रिपोर्टेड आंसर वुड बी 0.0150 and in this case even this 0 will be considered as significant क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। So I hope this concept is clear to you. Similarly students, multiplication में भी याद रखिएगा whenever we multiply 2 numbers तो हमारा आंसर हमारे given numbers से ज़्यादा significant digits contain नहीं करना चाहिए। If we are multiplying 2 such numbers which have different number of significant figures, तो whichever number contain lesser number of significant figures, उतनी ही significant figure तक हमारा आंसर भी reporting होना चाहिए। So I hope now you very well know the concept of significant figures. And with this portion, we come to an end of yet another important topic from some basic concepts in chemistry. In our upcoming video session, we will proceed with another important topic. Till then, have a good day. Bye-bye.